एक ठंडा वंडा पी लेंगे, चाय पी लेंगे, याद रखने। کہ ایک جانور ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے مالک کا وفادار ہوتا، اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور اس کی ذات والا کوئی بھی آئے تو ہرراتا ہو. کیسی مثال دی گئی ہے نا؟ ہاں. تو پھر انسان میں اور اس میں، ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ تو اپنے لیے تو ایک جانور بھی جی لیتا ہے، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی انسانیت کو باقی رکھے. انسان ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ انسان میں انسانیت رہنا کمال ہے. انسان میں انسانیت رہنا کمال ہے. اور انسانیت وہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے دکھ درد کا خیال جو ہے نا وقت کے اوپر مدد کرے. اور ایک بات آپ کو بتلاتا چلتا ہوں کہ ہر مسلمان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے. سب کو معلوم ہے نا یہ فرض ہے. لیکن کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، کیا یہ ہماری عبادت قبول ہوتی ہوں گی بول کے یقین ہے کیا؟ نہیں ہے نا. یہ اس کے رحم و کرم پر ہے. اگر وہ چاہے تو قبول کر لے، ورنہ ہمارے منہ پہ بھی مار دی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے زندگی کے طریقے ایسے ہیں کہ ہم خود نہیں کر سکتے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، کس حالت میں پڑھا ہوں. علامہ اقبال نے کہا کہ میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. ہم نماز میں تو ٹھہرتے ہیں لیکن ہمارا دل دماغ کدھر گی رہتا. سلام بہت سب کے لیے دعائیں. بہت ہی مختصر وقت میں جتنے حضرات کا نام میں جانتا ہوں اور جن کا نام نہیں جانتا ہوں انشاءاللہ جان جاؤں گا پہلی بار آپ تمام کی خدمت میں. انور صاحب، علی جناب اور مدنی صاحب، شکر مدنی صاحب، بابا صاحب اور جتنے حضرات بیٹھے ہیں تمام کا. اور میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ توفیق ملی ہے کہ اس حقوق انسانی کمیشن میں جو ہے داخل ہو کر کے تحفظ انسانیت کو بھی اقدام کیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو حضرات آپ تشریف فرما ہیں یہ تحفظ انسانی کا ایک بہترین جذبہ رکھتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا. کیونکہ انسان کی زندگی کا کیا اعتبار ہے. اور میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ ابھی کچھ ایام پہلے اس ایسوسیشن کی جو ہے کامیابی کے لیے تنظیم کی کامیابی کا ایک بہترین اعلان ہے کہ کچھ ایام پہلے میں لکھنؤ گیا تھا. وہاں پر کافی 10,000 12,000 کا مجمع تھا. اس کے درمیان میں خادم نے جو خطاب کیا تھا اس کے بعد وہاں کے جو لوگ ملے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ آج میں آپ تمام کے درمیان میں اس کرنا چاہوں گا. وہ جملہ یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے حیدرآباد بیکن میں ہیومن رائٹ ایسوسیشن چلتی ہے اور وہ بہت ہی بہترین کام کر رہی ہے. تو جبکہ میں اس میں داخل نہیں ہوا تھا میں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی سنا یہ بہت بہترین کام کر رہی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جملے کے لیے ضرور تھا. اب آپ سوچیں ہم یہاں پر تلنگانہ میں حیدرآباد میں اس مقام پر کام کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے. اس دیش کے کونے کونے پر اثر پہنچ رہا ہے. اور یہ جذبہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہے گا کیونکہ یہ تحفظ انسانیت کا مسئلہ ہے. انسانیت کے تحفظ کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. سرکار جو عالم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا
बहुत ही मुख्तलिफ शख्स आ रहा है तो सरकार इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और उस शख्स का माथा चुमा, उसे सीने से लगाया। असहाब पूछने लगे कि ऐसा क्या अमल इसने किया कि आप इस्तकबाल के लिए उठे और उसका माथा चूमते हैं उस बंदे का? इससे पूछो। जब पूछा तो कहा कि मुझे तो याद नहीं कि मैंने क्या नेकी की। का सरकार ने कहा कि ये जब अपने घर से निकल रहा था तो एक इंसान की उसने जान की हिफाजत की। अब यही से इस दौर, सरकार के दौर से ह्यूमन राइट का सिलसिला है। सरकारें जो आलम ने दी ह्यूमन राइट्स के लिए जो आवाज उठाई है, इसको समझना चाहिए ये कोई मजहबी बात नहीं है बल्कि इंसानियत का तहफ्फुज है। जब तक हमारी जान में जान है, साथ है, ह्यूमन राइट्स क्या है? एक गिरते हुए इंसान को हाथ थाम के उठा देने का नाम ह्यूमन राइट्स है। एक बेसहारा के सर पर हाथ रख देने का नाम ह्यूमन राइट्स है। इसके जबान तो है लेकिन आवाज नहीं है, उसमें आवाज पैदा कर देने का नाम ह्यूमन राइट्स है। मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला बाकी मोहम्मद वाले आपको इसी तरीके से ये खिदमत से नवाजे और जितने उम्मीदवारान हैं मौला उन सबको तरक्की अता करे। वस्सलाम, जय हिंद। मुबारकबाद देता हूँ। ये तालीमी मैदान में आपकी जो ना मदद कर रही है या किसी हॉस्पिटल के लिए अगर कोई आपको कोई दुश्वारी हो रही है तो ये लोगों की खिदमत आपके लिए है। और कई जो समाजी फलाही जो काम है ये लोग आपकी मदद करेंगे, मदद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी हिम्मतों को बुलंद फरमाए। आज मेरे सामने ये 100 है, 6 साल जो होना 1000 2000 जो होना इसके अंदर शामिल हो जाए। क्या काम पूरा हमारा जो ना शहर में बल्कि तेलंगाना में। और वक्त तो ये है कि अब हम जब तक जो ना मैदान में नहीं निकलेंगे, अब यहाँ पर हमारी जो ना जिंदगी गुजारने का बहुत मुश्किल तरीका है, मुश्किल हालात आ रहे हैं। अब तो हमको बेदार होना है, एक दूसरे के कांधे पर कांधा लगाकर हमको जिंदगी से जंग करना है, हालात से जंग करना है, हालात से जंग करना है। हाँ, आज इंसानियत के दुश्मन बहुत हो गए। मैं किसी मदद की बात नहीं करूँगा। इंसानियत के दुश्मन बहुत हो गए हैं और वो दुश्मन ये नहीं चाहते कि इंसान इंसान बना रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि इस इंसान को हैवानों में तब्दील कर दिया जाए। कुछ लालच देते हैं, हाँ, कुछ जमीन और जायदाद का पैसे का लालच देते हैं और वो जो ना वो इंसान, देखिए आप, इंसान जितना नसीब भी है और जब इसका दिमाग खराब हो जाए तो ये भेड़िए से भी बदतर हो जाता है, भेड़िए से भी बदतर हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबकी जो है ना हिफाजत फरमाए। ऐसे जो है ना दुश्मनाने इंसानियत के हरमों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमको अल्लाह के बंदों की खिदमत जो है ना हमेशा करते रहने का जज्बा अता फरमाए। वाक़ई दावा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। मैं ह्यूमन राइट्स हेल्प एसोसिएशन में स्टेट प्रेसिडेंट की हैसियत से हूँ। ये मेरे जैसा हमारे स्टेट ने नेशनल चेयरमैन साहब जो है सैयद शब्बीर अली मदनी साहब, जैसा कि आप लोग को जो वाज़े करे हैं उस हिसाब से आप लोग चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जो है हम लोग कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं आईडी कार्ड की, सुने ना, हम आईडी कार्ड की कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं हम लोग आप लोग से। आईडी कार्ड सिर्फ फ्री है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद शब्बीर अली मदनी, नेशनल स्पोक पर्सन एंड चेयरमैन ह्यूमन राइट हेल्प एसोसिएशन की जानिब से आज एक ऑफिशियल आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोग्राम रखा गया था, जो काफ़ी सारे हमारे भाई और बहन इस ग्रुप से जुड़े हैं। इन्हीं लोगों के लिए हम लोग एक खिदमत के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लाए हैं ताकि आगे बढ़ चढ़कर सब कोई अच्छे से अच्छा काम करें। और इसमें जितने भी आज आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग किया गया है, ये मीटिंग रखने का मेन फैसला ये था कि ये प्रोग्राम हम इसलिए रखें क्योंकि आईडी कार्ड जो है काफ़ी सारा हम तेलंगाना स्टेट में आज डिस्ट्रीब्यूटिंग किए हैं, तो उसमें से
50% लोग यहाँ पे आए हैं, 50% लोग का कोई रिस्पांस नहीं है। तो ये आईडी कार्ड का फैसले के लिए आज एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर हर मेंबर को इसमें आना था, आके अपना नाम, अपना पोस्ट, मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड नंबर लिख के जाना था। और जो मेंबर इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं सभी मेंबर्स को भी इत्तला कर दूं कि इस प्रोग्राम में आज जो मेंबर आए थे, जिसका आज रजिस्टर पर नाम, मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड नंबर लिखा गया है, ये लोग आने वाले साल तक भी हमारे साथ ह्यूमन राइट हेल्प एसोसिएशन में हर एक गरीब आवाम की हेल्प करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर से भी लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000 खर्चा करना है। आज के दौर में छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, कम से कम 500 रुपया दिन भर में कमा लेता है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हर इंसान अगर 500 रुपये कमाता है, 10 रुपये का चाय सिगरेट पी लेता है, तो आप सबसे गुजारिश ये करता हूँ कि हर इंसान एक 10 रुपये अपना ही शौक़ समझकर कोई गरीब इंसान की हेल्प करे। अभी इस प्रोग्राम में 150 से ज़्यादा मेंबर हैं। अगर हर आदमी 10 रुपये भी अगर डाला तो कम से कम 5 गरीब आदमी की पेट भर सकता है। आज 5 की भरेंगे आप लोग, कल 10 की भरेंगे। इससे अगर किसी से कुछ नहीं हो सकता, कम से कम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के रहिए। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है या कुछ भी मसले मसाइल थे, जैसा कि फैमिली काउंसलिंग, मेडिकल सेंटर में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एजुकेशन के ताल्लुकात से कुछ प्रॉब्लम है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, परेशान है, तो इंशाअल्लाह हर किसी के आईडी कार्ड के पीछे मेरा मोबाइल नंबर उपलब्ध है। आप लोग उस कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। बहरहाल ये ह्यूमन राइट्स हेल्प एसोसिएशन का आज समझिए कि मेंबरशिप ड्राइव के कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं। एक अच्छे मकसद के तहत ये समझिए कि काम शुरू किया गया है, और अगर इसको जो मकासद से आप काम शुरू कर रहे हैं उन मकासद पर ही अगर आप काम करें और उतना ही काम करें जितनी की चादर है, उतना काम आप शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला आपको आगे समझिए कि तरक्की अता करेगा। मैं एसोसिएशन के तमाम मेंबरान को, सदर को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि बहरहाल उन्होंने बड़ी मेहनत की। और ये कि इसको आप समझिए कि अगर सबकी मदद नहीं कर सकती तो ड्रॉ सिस्टम रख लीजिए। एजुकेशन पर जैसे मैंने कहा कि भाई आप कंडक्ट कर लीजिए एग्ज़ाम कंपटीशन का। हेल्थ के लिए आप सबकी मदद नहीं कर सकते तो आप 10 दरख्वास्तें आई हैं तो उसमें ड्रॉ कर लीजिए, जिसके नसीब है उसकी मदद करिए आप। तो ये कि ये काम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, एक ही दम डेवलप नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करिए तो ये काम ज़रूरी है। इस वक्त मिल्लत जिन मसाइल से दो चार है, उन मसाइल के दरमियान ऐसे एसोसिएशन इन कामों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, और इसकी शदीद ज़रूरत है। अल्लाह इस एसोसिएशन को इखलास के साथ काम करने की तौफीक भी अता करे और ये आगे भी बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ह्यूमन राइट्स हेल्प एसोसिएशन की एक मीटिंग में मुझे आने का इत्तेफाक हुआ, और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज की हमारी नौजवान नस्ल अपने लिए जीने के बजाय अपने दूसरे भाइयों को जीने का एक मकसद हयात बना लिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरे बाजू बैठे हुए एक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इन्होंने बताया कि 17,000 जो है ना स्टेट में यहाँ के मेंबर्स हैं, और क़रीब 3 करोड़ पूरे इंडिया में जो है ना इस एसोसिएशन के मेंबर है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और ये नौजवानों के लिए एक ऐसा लाहे अमल है कि अगर इस रास्ते पर चले तो यकीनन हर नौजवान को अपना मकसद ज़िंदगी हासिल हो जाएगा। जीने के लिए तो हर इंसान अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीता है, अपने लिए जीता है, लेकिन ज़िंदगी वो है जो औरों के काम आए, और जो अल्लाह के बंदों की खिदमत का जज्बा जिसमें पैदा हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनका और उनके ख़ानदान का कफ़ील बन जाता है। ये हकीकत है, इसको फरामोश नहीं करना चाहिए। और इस एसोसिएशन की जानिब से
تعلیمی میدان میں، ہیلتھ کے میدان میں اور ملازمت کے لیے اور بھی زندگی کے سماجی کئی شعبوں میں اس ایسوسیشن کے خدمات ہے اور ہزاروں لوگ اس سے جو ہے نا استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور میں آج یہاں پر تمام نوجوانوں کو بلا لحاظ مذہب و ملت، کیونکہ انسانیت کی خدمت ہر انسان کے لیے ہے، نہ کہ کسی مذہب کے لیے ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ مذہب اسلام نے خصوصی طور پر اس کی تعلیم دی ہے، لیکن ہر مذہب میں انسان کے احترام کی جو نا تعلیم موجود ہے۔ تو میں اس مد نظر سے تمام بلا لحاظ مذہب و ملت تمام ملک کے نوجوانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ایسوسیشن کا آپ بھی حصہ بنیں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ اسی میں جو ہے نا نہ صرف دنیا میں بھی بھلائی ہے بلکہ ہماری باقی کی جو زندگی آنے والی ہے اس میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ بس یہ الفاظ جو کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم